Hello everyone. Today's chapter 15 is about the struggle towards freedom. In this chapter we will read the British Raj and the First War of Independence. We will read about this. We will learn the arrival of the European in India, the establishment of the British Empire in India, and we will learn about the rising discontent among the Indians and the most important thing, the revolt of 1857. Let's start. For centuries, India was known for its wealth. India's geographical location and its wide resources with rich culture had made it prosperous. It was well known for spices, cotton and silk textiles, pearls, jewelry and other things. Means earlier India was very rich. इंडिया वॉज रिच फॉर इट्स वेल्थ, वो अपनी अमीरी के लिए जानी जाती थी. एंड इंडिया वॉज फेमस, मेनली फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, cotton, silk, textile, pearls, jewelry and other things. Arabs, Greeks and Romans had trade relations with India. Means they were having trade relations, means they did business with India. Import and export was carrying on that time. West European countries were also interested in developing trade with it. West European countries were also interested to develop a trade relationship with India. Portuguese were the first to reach India. Vasco da Gama, a Portuguese sailor, reached Calicut, Cape of Good Hope in 1498. This is very important. Anyone can ask who came to India by sea route. Which Portuguese came to India first by sea route? Vasco da Gama was a Portuguese who came to India. He got permission from the ruler of Calicut to carry on trade with India. Clear? This is very simple. He got the permission and from the ruler of Calicut, then he came to India and he started a business with India. Gradually the Portuguese established political power over areas like Calicut, Goa, Daman and Diu. Later on, traders from Holland, France and England were also attracted towards India. As India was very famous that time, so these traders were also attracted towards India. They fought among themselves. वो आपस में लड़ने लगे. The British threw out other European countries. इसी बीच क्या होता है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी और यूरोपियन कंट्रीज को एंटर किया ट्रेड के लिए. इन इंग्लैंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 100 इंग्लिश मर्चेंट्स फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD. क्लियर? इन इंग्लैंड में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ 100 इंग्लिश मर्चेंट्स होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों ने एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, in 1600 AD. The company got the British Queen's permission to have trade relations with the countries of the East. उसमें उन्होंने जो उनकी क्वीन थी उससे परमिशन ली कि they will have trade relations with the countries of the East. The company received permission to trade in India from the Mughal Emperor Jahangir. Now अब इंडिया से उन्हें ट्रेड करना था तो they got the permission from the Mughal Emperor Jahangir. You can see the image of Mughal Emperor Jahangir. The company's first ship landed at Surat. Now it was a time when company's first ship landed at Surat, a big port on the west coast of India. Later on they built settlements and godowns called factories at Madras. मतलब उन्होंने क्या बनाए, अब धीरे धीरे वो वहाँ पर सेट होते चले गए. उन्होंने अपने सेटलमेंट्स बनाए, लाइक गोडाउन्स बनाए जिनको फैक्ट्रीज बनाई एट मद्रास, कैलकटा एंड बॉम्बे. द इंग्लिश ट्रेडर बिल्ट फोर्ट्स अराउंड देयर सेटलमेंट्स. अब जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने जो उनके सेटलमेंट्स थे, लाइक उनकी फैक्ट्रीज थी, जो उनके गोडाउन्स थे, उनके चारों तरफ उनके जो बिल्ट फोर्ट्स अराउंड देयर सेटलमेंट्स, उन्होंने फोर्ट्स बना दिए, किले बना दिए. एंड केप्ट आर्म्ड सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पर सोल्जर्स को रख लिया. इंडिया एट दैट टाइम वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल किंगडम्स विच वर ऑफन एट वार विद अन अनदर. उस टाइम जो था इंडिया जो डिवाइडेड थी किसमें, छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में, और वो हमेशा एक दूसरे से, जो किंगडम्स थे जो एक दूसरे से फाइट करते रहते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज बैटल ऑफ प्लासी. Now we will read what was the reason of Battle of Plassey, what happened that time. Bengal at that time was ruled over by the Nawab Sirajuddaulah. He was upset by the activities of the British. He saw danger to his throne. He asked the British to remove their armies and guns from the fort at Calcutta. As we read earlier that Britishers ने क्या किया था, फोर्ट्स बना दिए थे अपने सेटलमेंट्स के चारों तरफ. तो जो वहाँ के
जो बंगाल थे, बंगाल था, वहाँ के जो रूलर था नवाब सीरज उद दौला, ही वॉज वेरी अपसेट। वो ब्रिटिश की जो एक्टिविटीज़ थी उनसे बहुत नाराज थे। ही वॉज वेरी अपसेट। उसको लग रहा था कि मेरा जो राज है, मेरा जो किंगडम है, उस पर क्या, मेरे थ्रोन होता है सिंहासन, उस पर क्या डेंजर है। ही आज द ब्रिटिश, उसने ब्रिटिशर्स को बोला कि आप अपनी आर्मीज को, अपने गन्स को जो कैलकाटा का फोर्ट है वहां से हटा लीजिए। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके फिर क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स ने नहीं माना तो अ बैटल वॉज फाउट एट प्लासी इन 1757। तब एक बैटल होती है, एक लड़ाई होती है इन 1757 बिटवीन द फोर्सेज ऑफ नवाब एंड द ब्रिटिश। किसके बीच में हुई? बिटवीन द फोर्सेज ऑफ नवाब, जो नवाब थे, और फोर्सेज, बिटवीन द फोर्सेज ऑफ नवाब एंड ब्रिटिश। नवाब सिराजुद्दौला लॉस द बैटल एंड द ब्रिटिश बिकेम पावरफुल इन बंगाल। अब क्या होता है, जो नवाब थे वो अपनी उस बैटल में वो हार जाते हैं, और उनका जो किंगडम था वो कौन ले लेता है, कौन पावरफुल बन जाता है वहां पर? ब्रिटिश। मैनी किंग्स इन आवर कंट्री वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। द ब्रिटिश हेल्प्ड वन अगेंस्ट द अदर। They benefited from internal fights and captured a large part of India. जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वो जो इंडिया थे, इंडिया में जो लोग आपस में, जैसे अलग अलग राज्य के जो किंगडम के लोग थे, जो किंग्स थे, वो आपस में फाइट करते थे, और इसका बेनिफिट किसने ले लिया? ब्रिटिशर्स ने ले लिया। वो उनको लड़ाते थे और उनका जो किंगडम था उसको खुद कैप्चर कर लेते थे। दे कलेक्टेड अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द किंग्स ऑफ एंड द पीपल। मतलब उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई, फॉलो की? डिवाइड एंड रूल। पहले लोगों को डिवाइड किया और फिर उन पर रूल किया, फिर उनको उनके ऊपर राज किया। क्लियर? सो नाउ टर्न योर पेज एंड कम टू द पेज नंबर 112. Injustice of the British. In this topic we will learn how they were injustice towards the Indians. The administration of East India Company forced the farmers of Bihar to grow indigo. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में सेटल की थी, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? वो इंडियन फार्मर्स को फोर्स कर रहा था, जो बिहार के फार्मर्स थे, टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो इज अ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्लू पाउडर यूज्ड फॉर डाइंग क्लोथ इज मेड। जैसे हम जो क्लोथ होता है वो वाइट कलर का बनता है, उसको डाई करने के लिए, उसको कलर करने के लिए उस इंडिगो का यूज़ किया जाता था। तो जो वो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो फोर्स कर रहा था बिहार के फार्मर्स को कि आपको क्या ग्रो करना है? इंडिगो ग्रो करना है। द ब्रिटिश ट्रेडर्स बॉट इट एट अ लो प्राइस। दिस डाई वॉज यूज इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मिल क्लोथ। अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, वो इंडिया से इसको लो प्राइस पर खरीदते थे और इसको इंग्लैंड भेज देते थे। किस चीज़ के लिए? फॉर डाइंग मिल क्लोथ। वहाँ पर जो मिल लगी हुई थी, जो फैक्ट्रीज लगी हुई थी, उस क्लोथ को डाई करने के लिए। द फार्मर्स हैज़ नो नीड फॉर इंडिगो एज दे नीडेड फूड ग्रेन्स टू फीड देमसेल्व्स। अब फार्मर्स जो थे, उनको इंडिगो की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिगो से तो उनका पेट नहीं भरेगा ना। उनको क्या चाहिए था? दे नीडेड फूड ग्रेन्स। उनको अनाज चाहिए था अपने आप को और अपना पेट भरने के लिए। दे वर फोर्स टू सेल इंडिगो टू द ब्रिटिश एट अ लो प्राइस। उनको फोर्स किया जाता था कि वो इसको लो प्राइस पर इंडिगो को ब्रिटिशर्स को सेल कर सॉरी। Thus the Indian farmers became poor under the British rule. और इस वजह से क्या हुआ? ब्रिटिश रूल में Indian farmers became poor. Right? Thus the Indian farmers became poor under the British rule. Even the cotton and silk textile weavers were compelled to sell the cloth at a very low price. अभी तो इंडिगो की बात थी. Now कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल वीवर्स वर ऑल्सो कंपेल्ड। उनको भी कंपेल किया जाता था कि वो भी, अब देखो सिल्क कितना कॉस्टली होता है, कॉटन कितना कॉस्टली होता है, कि वो भी इन सब चीज़ों को लो प्राइस पर सेल करें। द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री also became the victim of British greed. Greed means लालच। जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री थी वो भी जो ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत उसने सफ़र किया, उनके लालच, क्योंकि वो ग्रीडी हो चुके थे, उनको और चाहिए था, वो कहते थे हमें लो प्राइस पर बेचो। तो ब्रिटेन डिड नॉट ग्रो कॉटन ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। अब ब्रिटेन का क्लाइमेट कैसा था? कोल्ड। वहाँ पर वो कॉटन को ग्रो नहीं कर सकते थे। बट दे हैड बिग कॉटन टेक्सटाइल मिल्स विच रिक्वायर्ड कॉटन। लेकिन ब्रिटेन में बहुत सारी क्या थी? बिग कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी जिसमें कॉटन चाहिए होता था। सो कॉटन वॉज बॉट फ्रॉम हेयर एट अ लो प्राइस एंड सेंट टू ब्रिटेन। तो कॉटन यहाँ से कहाँ पर बेचा जाता था? ब्रिटेन में लो प्राइस पर। इन रिटर्न कॉटन क्लॉथ वॉज शिप्ड बैक टू इंडिया एंड सोल्ड इन इंडियन मार्केट। अब वहाँ जा तो यहाँ से रहे कॉटन,
और ब्रिटेन में बनकर आता था इंडिया की मार्केट में हाई प्राइसेस पर। द इंडियंस हैड टू बाय दिस क्लोथ एट अ हाई प्राइस। अब इंडियंस को अपना ही क्लोथ हाई प्राइस पर परचेज करना पड़ता था। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू स्टार्ट देयर ओन मिल्स ऑफ और फैक्ट्रीज। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे कि जो इंडियंस हैं वो अपनी मिल्स लगाएं, अपना क्लोथ खुद से बना पाएं। दे वर नॉट अलाउड टू डू सो। Under such conditions, the farmers, artisans and even the traders became unhappy. अब सब इस वजह से बहुत दुखी थे. The kings and nawabs were dissatisfied. They were treated badly and many lost their kingdoms. उनके साथ इतना बुरा बिहेव किया जाता था. अब उनके साथ फाउट किया जाता था. जब क्या होता था उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास तो बहुत ज़्यादा वेपन्स होते थे और आर्मी होती थी, और जो इंडियन नवाब से किंग्स थे वो उस बैटल में हार जाते थे और उनका जो किंगडम था वो फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा ले लिया जाता था. द ब्रिटिश मेड अनजस्ट लॉज टू टेक कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर किंगडम्स. इस तरह से वो ऐसे से लॉ बनाते चले गए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किंगडम्स पर अपनी पावर कर सके, उसको अपने अंडर कर सके. वन सच लॉ वॉज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ऐसे ही जो उन्होंने लॉज बनाए उसमें एक आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इसमें क्या होता है, विच सेड दैट इफ अ किंग डाइड विदाउट अ चाइल्ड हिज किंगडम वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. इसमें यह था कि अगर कोई राजा जिसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई बेटा नहीं होता है तो उसका जो किंगडम था वो ब्रिटिशर्स द्वारा ले लिया जाएगा. द रूलर ऑफ झांसी उत्तर प्रदेश, वी ऑल्सो लिव इन उत्तर प्रदेश. द रूलर ऑफ झांसी उत्तर प्रदेश डाइड. क्या होता है, जो रूलर ऑफ झांसी थे उनकी डेथ हो जाती है. द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड नॉट टू अलाउ हिज अडॉप्टेड सन टू बिकम द नेक्स्ट रूलर. अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने बोला कि झांसी के जो किंग थे उनका अपना कोई बेटा नहीं था, अब वो तो मर गए, उन्होंने उस बेटे को अडॉप्ट किया हुआ है तो इसको हम रूलर नहीं बना सकते. दे वॉन्टेड टू टेक ओवर द किंगडम अंडर द ब्रिटिश रूल. तो दैट्स वाई जो रानी, आपने सुना होगा ना, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की थी. People in general were unhappy with the unjust and greedy ways of the British. Most of Indians in almost every walk of the life lost their livelihood. The जमींदारी system has made the lives of the farmers miserable. अब जमींदारी सिस्टम से जो फार्मर्स थे उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी थी. द किंग्स एंड, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि उनको टैक्स पे करना पड़ता था. द किंग्स एंड द प्रिंसेस लॉस्ट देयर पावर्स. वो अपनी पावर, किंग्स एंड प्रिंसेस लॉस्ट देयर पावर. द इंडियन सोल्जर्स वर पेड लेस देन द ब्रिटिश सोल्जर्स. और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको सैलरी भी बहुत, तो कितना सफ़र किया उनको. कहीं जगह होता था कि उनको फोर्स किया जा रहा है ग्रो करने के लिए कि आपको एक क्रॉप ग्रो करनी है, और दूसरा ये होता था कि उनको सैलरी भी कम मिलती थी कंपैरेटिवली ब्रिटिश सोल्जर्स. सो दीज वर द अनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश. थैंक यू.